Narayan. In this video, I have picked up a beautiful piece of advice from Valmiki Ramayana. This advice is being given by Malyavan to Ravan. Malyavan is the maternal grandfather of Ravan. And when Sri Rama and his army has been stationed at outside the door of Lanka, the primary gate of Lanka, the north one, and they're all there, Ravan is alarmed and he calls in an urgent meeting of all his sons, his ministers, troop commanders, army chiefs, and everyone is there in the assembly hall. And then Malyavan comes at this point and gives a beautiful piece of advice to Ravan. And he is concerned for Ravan as well as all the citizens of Lanka. So, in a gist, I'll give you the summary of this advice. The summary is this, that any king who finds an opponent who is more powerful than him must actually conclude peace with that enemy, so he can retain his lordship, and he can become powerful by associating with a much powerful enemy. He both of them combined together can become a very powerful force against a third enemy if there is. So this is the prudence with which a king must act in the interest of his citizens, the future of the citizens. He then says that Dharma constitutes the sheet anchor of the celestial beings, the rishis, and the people who follow Dharma. These are actually the foremost in virtue, the foremost in Dharma. So, Dharma becomes the sheet anchor of all these beings, and the devilish order, the two order of beings, the celestial and devilish, which has been formed by Brahmadev. So, the devilish order naturally chooses adharma. So adharma becomes their sheet anchor. Now this sheet anchor is very weak. It can be destroyed easily by the force of dharma. And since he says that Ravan has, he suggests Ravan that since you have attacked the root of dharma, the root of dharma is the sacrifices, the seers of Vedic mantras. You have attacked them, you have harassed them, disturbed their sacrifices, destroyed their sacrifices. So the asceticism that has been gained by all these rishis of divine origin, and the austere penance that they've undergone, and the asceticism of their collective penance is now apparent in the form of this formidable force, the formidable army which is standing right at the door of Lanka. And he then reminds Ravan that you don't have a boon to not be killed by monkeys, human beings, bears, and golangulas. Golangulas are monkeys of with short tail. So you have a boon from Brahmadev that the gods, the demons, and the yakshas will not be able to kill you, but the human beings, the human species, monkeys, bears, and golangulas can all kill you. So if you look at your army very, very carefully, these four species are right at your door. So this is a very, very subtle and very clear indication from the gods, from your own providence, that your death is near. Someone who can kill you is at your door. So don't be heedless to my advice. And then he reminds him that since Sri Rama is the only one who has thrown a bridge across the sea, no god has been able to manufacture a bridge across the sea. He has thrown a bridge, and he single handedly has destroyed 14,000 ogres in Janasthana, including Khara and Dushana, who were too powerful, too Atirathis. So, deeming the prowess of Sri Rama, don't see him as a mere mortal. We hear from all the beings that he is no other than the incarnation of Vishnu himself. He is incarnated to enhance the cause of Dharma. And look at the powerful force of Dharma. Dharma is actually supporting Sri Rama in the form of monkeys, the Gandharvas, the Vidyadharas, the Siddhas, the Rishis, and even time. Everyone is applauding the force of Dharma. So your enemy is quite powerful than you. It it is heedful for you to conclude peace with Sri Rama by restoring Sita to him, and then retain your lordship of the ogres in Lanka. So this is a beautiful advice that his maternal grandfather Malyavan gives to Ravan. But Ravan, as usual, derides his advice, and he runs back to his gymnasium after instructing all his troop commanders to guard the four gates of Lanka.
So this is a beautiful piece of advice which is useful for all of us even today, because in Kali Yuga the force of adharma is so powerful that we need dharma in our daily practice to make itself as a sheet anchor. Dharma must become our sheet anchor, and this only becomes by we following the injunctions of dharma. This is the only medium. Otherwise, dharma will not protect us. So this is the clear message of this particular advice of माल्यवान. ये जो वीडियो के लिए मैंने एक सुंदर संदेश उपदेश लिया है वाल्मीकि रामायण से है, और माल्यवान जो है वो रावण के नाना जी है और रावण को सुंदर उपदेश दे रहे हैं। और श्री राम की सेना जब यहाँ पर आई हुई है लंका के द्वार पर पहुंच गई है, सभी बड़े बड़े जो वानर है, वानर के सेनापति है, वानरों की सेना के सेनापति है सभी यहाँ पर उपस्थित है, लंका के द्वार पर डेरा जमाए हुए हैं। सभी लोग बहुत ही उत्सुक है युद्ध के लिए, क्योंकि सभी को पता है कि ये धर्म युद्ध है और इतनी बड़ी सेना है। इतना वर्णन सुंदर है कि लंका में तो पहुंच ही गए हैं, उसके जो पुल है, पुल बांधा हुआ है, पुल पे से और वानर आ रहे हैं। अच्छा, और भारत के दक्षिण समुद्री तट पर और वानर वहां पर है जो और लाइन में खड़े हैं, जिनको और यहाँ पर आना है। तो इतनी बड़ी सेना होती है। और आगे वर्णन ऐसा है कि कितने युद्ध के कितने दिनों बाद भी, तब तक भी बहुत सारे वानर और ही आ रहे हैं पुल के ऊपर से, भारत से लंका की ओर आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी सेना है, अरबों खरबों 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 की सेना है और इसका जो मेजरमेंट है वो भी दिया गया है, शंकु और शंकुओं के शंकु, कितनी बड़ी सेनाएं हैं। सो अनगिनत सेना है। अगर महाभारत की सेना की तुलना की जाए तो महाभारत की सेना तो चींटी बराबर हो सकती है श्री राम की सेना के साथ। कितने वानर हैं, मतलब उसकी गिनती ही नहीं हो सकती है। मगर फिर भी हमारे ऋषि वाल्मीकि ने इतनी सुंदर गिनती की है कि हम कितने 1:, कितने जीरो लगाएंगे, 20, 30, 40, 1:, इतना होता है। तो इतने सारे वानर वहाँ पर उपस्थित है धर्म युद्ध में। और ऐसी स्थिति होती है तभी रावण बहुत ही चौंक जाते हैं और फिर सभा बुलाते हैं, अपने सभी पुत्रों को बुलाते हैं, सेनापतियों को बुलाते हैं, जो मुख्य उनके जो अतिरथी होते हैं सभी को बुलाते हैं और सभी से चर्चा की जाती है कि अभी क्या किया जाए। ये हमारा जो शत्रु है वो तो यहाँ पर पहुँच गया है, तो अभी हम कैसे आगे बढ़े। और तभी माल्यवान जो आते हैं और एक उनको सुंदर उपदेश देते हैं। माल्यवान बहुत चिंतित है अपने पौत्र के लिए और लंका की प्रजा के लिए, और बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं। वह अभी इस कलयुग में हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि कलयुग में अधर्म का बहुत ही जोर पकड़ रहा है, अभी भी बहुत ही अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। इसीलिए ये जो संदेश है बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। अधिक उपयोगी कलयुग में ही कहा जा सकता है, क्योंकि अधर्म बहुत सब पर हावी हो रहा है, दुनिया पर, सोच पर, घरों में, सब जगह हावी हो रहा है। तो सुंदर उपदेश देते हैं। माल्यवान कहते हैं कि अगर कोई राजा है, अगर उसको लंबे काल तक उसको राज करना है, तो उसको जो धर्मशास्त्र में 14 नीतियाँ कही गई है, वो 14 नीतियों को पालन करते हुए, उसका आलम्बन लेके बहुत ही सूझबूझ के साथ निर्णय लेना है। एक निर्णय आप राजा का अगर सोचे कि एक निर्णय अगर राजा ऐसा ले ले तो उसका पूरा राज्य विनाश की ओर जा सकता है, और ऐसा एक निर्णय ले ले तो उसके पूरे राज्य का उद्धार भी हो सकता है। तो राजा के एक निर्णय से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो एक भी निर्णय अगर यहाँ का वहाँ हो गया तो बहुत ही बड़ी दुविधा उत्पन्न हो सकती है। तो आप सोचिए कि राजा का उत्तरदायित्व कैसे होता है, कितना बड़ा होता है। तो अगर इस माध्यम से हम आज के जो मंत्री होते हैं, यहाँ पर कोई राजा तो नहीं है, सब मंत्री भी है, सबसे बड़े मंत्री भी प्रधानमंत्री ही है, कोई राजा तो नहीं है। तो उनका भी अगर कोई निर्णय यहाँ का वहाँ हो गया तो पूरे देश में बहुत बड़ी दुविधा उत्पन्न हो सकती है, जो हो रही है, होती ही रहती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमें ये भी सिखाता है कि जो उत्तरदायित्व जिसका होता है
उसको सबसे अधिक सूझबूझ होनी चाहिए, उसकी विवेक बुद्धि बहुत ही तीव्र होनी चाहिए, क्योंकि उसके एक निर्णय पर प्रजा का सुख, परिवार का सुख, कुटुंब का सुख भी निर्भर होता है। तो कितना बड़ा ये उत्तरदायित्व है, जो भी मुखिया होता है, घर का मुखिया है, कुटुंब का मुखिया है, एक समाज का मुखिया है, एक कौम का मुखिया है और पूरे देश का कोई मंत्री है, तो कितना बड़ा उत्तरदायित्व होता है। तो बहुत ही सूझबूझ के साथ उनको निर्णय लेना होता है और केवल प्रजा की रक्षा, प्रजा का उद्धार और कल्याण, यही इसके आश्रय रहते ही उनको सभी निर्णय लेने होते हैं। स्वयं के स्वार्थ के लिए कोई भी निर्णय नहीं होना चाहिए राजा का या कोई मंत्री का। अगर ऐसा है तो वो राजा कहलाने के योग्य ही नहीं है। तो ये बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई राजा के सामने कोई शत्रु आ जाए, तो उसका जो शत्रु है उसकी शक्ति अगर समान है और या तो उसकी शक्ति उससे अधिक है, तो ये दो सिनारियो में, ये दो केस में ये राजा को बहुत ही इसके लिए उचित है ऐसे राजा को कि दोनों से संधि ही कर ले। जो इससे अधिक शक्तिशाली है उसके सामने तो वो जीत ही नहीं सकता है, तो उसका अगर आकलन करे तो वो हार ही जाएगा। अगर युद्ध भी करे तो ऐसे शक्तिशाली शत्रु के साथ तो आपको संधि ही करनी है, उसको मित्र बना लेना है और उसका मित्र बनने से शक्ति दुगनी हो जाती है। ये बहुत ही चतुराई वाला निर्णय है। अगर समान शक्ति वाला है, उसके साथ अगर युद्ध भी कर ले तो परिणाम दो होंगे, या तो वो हार सकता है या तो जीत सकता है। मगर हार भी जाएगा तो भी नुकसान तो होगा और जीत भी जाएगा तो भी नुकसान होगा। तो अगर उसको निर्णय लेना है कि मुझे राजगद्दी पर लंबे समय तक रहना है, मेरी प्रजा की रक्षा करना है, तो उसके लिए उचित यही है कि समान शक्ति वाला शत्रु हो, उसके साथ भी वह संधि कर ले। तो जो विनाश होने वाला है, छोटा सा भी विनाश अगर होता है, वो भी बच सकता है, उसकी गद्दी भी बच सकती है, उसका राज्य भी बच सकता है, राजा जो है वह अपनी गद्दी पर बैठे भी रह सकता है। और ऐसा समान शक्ति वाला मित्र बन जाए तो उसकी भी शक्ति दुगनी हो जाती है। ये बहुत ही चतुराई वाले निर्णय होते हैं, ये जो हमारे 14 नीति शास्त्र में, धर्म के शास्त्रों में लिखे गए हैं। तो उसके आधार पर एक राजा को बहुत ही सूझबूझ के साथ निर्णय लेने हैं। फिर माल्यवान कहते हैं कि आप अगर श्री राम की सेना को देखिए तो उनकी शक्ति बहुत ही अधिक है। उनके पास जो दिव्य अस्त्र है, उनके जो संख्या है उनकी सेना की बहुत ही विशाल है। वानरों की शक्ति अगर देखें, हनुमान की तो हमने देख ही ली है, अगर ऐसे ही अगर हुए बहुत सारे वानर तो फिर हमारी पराजय निश्चित है। तो आपके लिए उचित है कि आप श्री राम के साथ संधि ही कर ले, क्योंकि आपसे अधिक शक्तिशाली है, सीता को आप उनको दे दीजिए। तो बहुत ही ये सुंदर भी संदेश उनको देते हैं। फिर वो कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने जो रचना की है उसमें दो कोटि के वर्ग ब्रह्मदेव ने बनाए हैं। एक तो है वह बहुत ही असुर कोटि के होते हैं और दूसरे जो होते हैं वह सुर कोटि के होते हैं, जो पवित्र होते हैं। जो सुर कोटि के लोग होते हैं वह धर्म का चयन करते हैं। तो धर्म का चयन करने से क्या होता है कि इनका जो रक्षक है, कवच है, वह धर्म ही बन जाता है। और असुर कोटि के जो लोग हैं वह अधर्म का चयन करते हैं, तो इनका जो कवच होता है वह अधर्म होता है। और आपने अपने जो विश्व में आप भ्रमण करते रहते थे, मनमाना आचरण करते घूमते थे, आपने अपने इंद्रियों के अधीन ही रहकर आपने मनमाना जीवन जिया है और आपने सब जगह पूरे विश्व में जा जाके जो वेद के दृष्टा थे, वेद मंत्रों के दृष्टा, बहुत महान ऋषि, उनको ही आपने तंग किया है, उनके ही यज्ञ का विनाश किया है, भंग किया है और आपने उनको बहुत ही सताया है। तो इसका परिणाम जो हुआ है वो आप ये देखिए कि वह जो ब्राह्मण है, ऋषि है, बहुत ही शक्तिशाली हो गए हैं। वो वेद मंत्रों का उच्च स्वर में उच्चारण कर रहे हैं। इसके माध्यम से क्या हो रहा है कि पूरे वातावरण में वेद शब्दों के माध्यम से सब जगह जाने लगे हैं और इसका जो परिणाम है वो ये हुआ है कि जो हमारे जो राक्षस गण हैं
उनकी शक्ति है वह बहुत ही क्षीण होती जा रही है, निर्बल होते जा रहे हैं। तो वातावरण में वेद शब्द बहुत ही अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। और फिर जो यज्ञ में आहुति डाली जा रही है, ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं, बहुत ही महान महान यज्ञ भी कर रहे हैं, और यज्ञ के माध्यम से वह यज्ञ पुरुष की स्तुति कर रहे हैं, यज्ञ पुरुष को और शक्तिशाली बना रहे हैं। क्योंकि यज्ञ पुरुष जो है वह भागवत पुराण के माध्यम से आप अगर देखें तो यज्ञ पुरुष भी एक नारायण का अवतार है, और इनकी जो पत्नी होती है वह दक्षिणा होती है। तो ये एक रूपक है। अगर कभी भी कहीं भी यज्ञ होता है तो यज्ञ करने वाले को दक्षिणा दी जानी अनिवार्य होती है। दक्षिणा यज्ञ पुरुष से अविभाज्य है। अगर यज्ञ कहीं हो रहा है तो दक्षिणा तो देनी ही है। दक्षिणा नहीं देते हैं तो यज्ञ पुरुष क्रोधित हो सकते हैं, और जो यजमान होते हैं उनका संकल्प होता है वह पूरा नहीं होता है, बल्कि उनका विनाश भी हो सकता है। तो कहीं भी अगर आप अपने घर में या बाहर कहीं भी यज्ञ करवा रहे हैं तो आप अवश्य उचित और श्रेष्ठ दक्षिणा ही ब्राह्मणों को दीजिए, जिससे आपका जो संकल्प है वो आपको वह पूरा हो सकता है। ये भी एक दूसरा संदेश माल्यवान ने दिया है। तो वो कहते हैं कि आपने धर्म के मूल पर प्रहार किया है। धर्म का मूल जो है वह यज्ञ है, जो वेदों के दृष्टा है, जो ऋषि है, उन पर ही प्रहार किया है, जिसके माध्यम से धर्म टिका हुआ है। तो अगर आपने मूल पर प्रहार किया है, इसीलिए अभी क्या हो रहा है कि धर्म जो है वह इनकी सहायता कर रहा है, इनका रक्षक बने हुए हैं। श्री राम का रक्षक बन गया है, वानर का है, रीछों का है, और ये जो गोलंगुलास जो अलग टाइप के वानर हैं उनका भी सब रक्षक बन गया है। और ये जो वानर आप देख रहे हैं वो सभी भी देवताओं के ही योनि से उत्पन्न हुए हैं। तो ये देवताओं के ही सब पुत्र है। तो इनको आप सामान्य वानर न गिनिएगा। बहुत सुंदर क्या समझाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि आपने जो अधर्म रूपी अजगर पाला है, तो ये अधर्म रूपी अजगर जो है वो हम सभी को खा जाएगा, उगल लेने वाला है, तैयारी रखिएगा। माल्यवान ने रावण को चेतावनी दी है कि आपने जो अजगर पाला है अधर्म रूपी, ये आपने ही इसको बढ़ावा दिया है, ये आपको ही खा जाएगा, हम सभी को खाने वाला है। तो ये बहुत विकट परिस्थिति आ चुकी है। और फिर उनको याद दिलाते हैं कि आप याद कीजिए, आपने जब ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था तो आपने ये वरदान मांगा था कि देव, दानव और यक्ष ये तीन मुझे नहीं मार सकते हैं, मगर आपके मुख से ये नहीं निकला था कि मनुष्य योनि में से उत्पन्न हुए मनुष्य, वानर या कोई भालू या फिर गोलंगुला। गोलंगुला एक प्रकार के वानर ही होते हैं जिसकी पूंछ बहुत छोटी होती है, कौवे के समान छोटी पूंछ होती है, मगर वो बहुत ही विशाल साइज वाले होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। पर्वतीय उनकी जो विशालता होती है, इतने बड़े होते हैं। तो ये भी एक प्रकार के वानर हैं। मगर ये चारों जो उत्पन्न हुए हैं, तो माल्यवान कहते हैं कि अगर आप अपनी शत्रु की सेना पर ध्यान देकर आप देखिए तो ये जो चार योनि में से उत्पन्न हुए हैं, यही चार आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है, आपके द्वार के बाहर खड़े हैं, युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। तो आप ये चेतावनी सुनिए, चेतावनी मानिए कि देवताओं ने आपको एक चेतावनी भेजी है कि जो योनि में से उत्पन्न होने वाले जो आपको मार सकते हैं, जिससे आपका बचाव नहीं किया जा सकता वरदान के रूप में, वो ही यहाँ पर खड़े हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मनुष्य भी है, वानर भी है, भालू है, गोलंगुला है, तो ये चार तो मुझे मार सकते हैं। तो यही चार आपके सामने है, और ये चार शक्तिशाली भी है। फिर उनको और एक संकेत देते हैं कि अगर आप श्री राम को सामान्य पुरुष मानते हैं तो उनका जो पराक्रम है वो देखिए। जो समुद्र तट पर कोई पुल कोई देव भी नहीं बांध सका, तो श्री राम ने पुल बांध कर यहाँ पर आ भी गए। हम सोच रहे थे कि पुल कोई बांध ही नहीं सकता है, मगर पुल बांध दिया और फिर यहाँ पर आ गए। और जनस्थान में उन्होंने अकेले, लक्ष्मण की सहायता के बिना अकेले ही खड़े होकर
दिव्य अस्त्रों से 14,000 राक्षसों का वध किया है। उसमें से खर और दूषण भी थे, जो महारथी भी थे, तो उन दोनों का भी वध कर दिया है अकेले ही दिव्य अस्त्रों से। तो आप इनको, ये सब इनका जो पराक्रम है, इनसे आप ये सोचिए कि ये सामान्य पुरुष नहीं है। और हमने बहुत लोगों से सुना है और ये अभी निश्चित किया जा सकता है कि श्री राम स्वयं विष्णु के ही अवतार है और धर्म की रक्षा हेतु ही उनका जन्म हुआ है। तो आपके लिए यही उचित है, ये जो मैंने आपको कहा है, ये सबको ध्यान में रखते हुए आपके लिए यही उचित है कि आप श्री राम के सामने शरणागत हो जाइए, सीता को उनको दे दीजिए और आप उनसे संधि कर लीजिए, मित्रता कर लीजिए, ताकि लंका बच जाए, लंका की प्रजाओं की रक्षा हो और आपकी भी रक्षा हो, आप भी यहाँ पर लंबे समय तक राज कर पाएंगे। इतना सुंदर, सटीक, सरल संदेश, सरल भाषा में उनको समझाया, मगर फिर भी रावण नहीं माने। रावण ने उनको धुतकार दिया और उनके जो सेनापति थे उनको कहा गया कि भाई चारों जो द्वार है लंका के, चारों द्वार पर आप खड़े हो जाइए सेना लेकर और मेरे आदेश की प्रतीक्षा कीजिए, और फिर अपने कक्ष में चले जाते हैं। तो उसके बाद हमको पता है कि क्या हाल हुआ रावण का। तो ये संदेश से हमें यही पता चलता है, एक तो ये कि जब विकट परिस्थिति आती है किसी के भी जीवन में, तो अगर उसके ही परिवार वाला या उसका कोई हितैषी अगर उनको अच्छी सलाह दे, अच्छे उपदेश दे, संदेश दे कि भाई आप ऐसा न करिए, ऐसा करने से आपका आगे जाके अहित हो सकता है, आप ऐसा ऐसा करेंगे भले आपको कठिनाई होगी, मगर ऐसा ऐसा करेंगे तो आपका आगे जाके हित होगा। मगर विकट परिस्थिति में सामने वाले कभी समझते ही नहीं हैं। मगर जो समझाने वाले होते हैं, विवेकी जो होते हैं, उनका दायित्व यही है कि उनको समझाते रहे, क्योंकि विवेकी का दायित्व अधिक होता है। जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण संवाद में श्री कृष्ण जो है वह अधिक विवेकी थे, तो उनका दायित्व था कि अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म का स्मरण दिलाए कि भाई आपको निर्बलता नहीं दिखानी है, आपको अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। तो ये जो विवेकी का दायित्व अधिक होता है, ये सिद्धांत बहुत ही सटीक सिद्धांत है। ये घर में भी लागू पड़ता है, समाज में लागू पड़ता है। हमारे कौम के बड़े, हमारे जो कुटुंब होते हैं, परिवार के बड़े बड़े परिवार में अगर कोई गंभीर निर्णय लेने होते हैं, तभी एक मुखिया जो होता है तो उसको बहुत ही ध्यान रखकर, सूझबूझ रखकर ये निर्णय लेने होते हैं। अगर वो सही नहीं है, अधर्म के कक्ष में ऐसा अगर निर्णय है, तो लोगों को, जो विवेकी हैं, उनको समझाना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा करने से हमारी सबकी हानि होगी आगे जाके, हमको उचित है कि ऐसा ऐसा करिए जिससे हम सभी का आगे जाके कल्याण हो। भले ये करने में हमको कठिनाई थोड़ी भोगनी पड़े, मगर धर्म का आलम्बन ही लेंगे, ताकि धर्म हमारा कवच बन पाए और धर्म फिर हमारी रक्षा कर सके। दूसरा एक संदेश बहुत ही सुंदर है कि सूझबूझ के साथ निर्णय लेना। एक जो मनुष्य होता है, समझो परिवार का कोई मुखिया होता है, मुखिया पुरुष होता है, जो बड़े वृद्ध लोग होते हैं, तो उनको जब निर्णय लेना होता है तो उनको अपने परिवार का हित को ध्यान में रखते ही सब निर्णय लेने होते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ को उसको ध्यान में ही नहीं रखना है, चाहे वो परिवार का मुखिया हो, कुटुंब का मुखिया हो, समाज के बड़े वर्ग का मुखिया हो, या फिर कोई बड़ा मंत्री हो, या स्वयं प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उनको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को ध्यान में ही नहीं रखना है। तो ही तो वो कुर्सी पर बैठने के योग्य बनता है, जब ही केवल और केवल वो प्रजा की ही रक्षा के लिए सोचे, प्रजा के उद्धार कल्याण हेतु वह सोचे और ऐसे ही निर्णय ले जिससे धर्म और बड़े और शक्तिशाली बनते जाए और सभी के जीवन में धर्म का प्रचार हो। ऐसा ही हमें मुखिया चाहिए, ऐसा ही हमें एक लीडर चाहिए, राजा चाहिए। अभी तो फिलहाल कोई राजा है ही नहीं, सबसे बड़े मंत्री भी प्रधानमंत्री है, कोई राजा नहीं है। तो राजा जब होते हैं, राजा केवल क्षत्रिय ही बन सकते हैं, उन्हीं को अधिकार है।
और आगे जाके जब अभी राजतंत्र आने ही वाला है थोड़े समय में, तो आप देखेंगे कि राजा का जो निर्णय होता है वह बहुत ही सटीक होता है, धर्म के आश्रित ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है, कोरी भावुकता नहीं होती है, और कोई कोई लालसा नहीं होती है, सत्ता की लालसा भी नहीं होती है। तो ऐसा ही राजा हमें चाहिए, और वह केवल अपने प्रजा की रक्षा हेतु ही निर्णय लेता रहे। और तीसरा एक सुंदर संदेश है कि धर्म हमारा कवच कैसे बनता है। तो उत्तर ये है कि धर्म हमारा कवच ऐसे बनता है जब हम स्वयं धर्म का पालन करें, हम धर्म के आश्रय में जाए। धर्म का पालन कैसे किए करना है, जो धर्म शास्त्र में जो हम सभी के लिए नियम कहे गए हैं, सुबह से शाम वर्ण के आधार पर जो नियम कहे गए हैं, और जो सामान्य नियम है, मुख्य नियम है, तो अगर हम धर्मशास्त्र से प्राप्त करें, उचित तो यही है कि कोई सुप्रसिद्ध गुरु, और ऐसा गुरु जो शास्त्र के अतिरिक्त कोई बात ही न करे, शास्त्र को ही भगवान स्वयं माने और शास्त्र का ही प्रचार करता हो, ऐसे गुरु के शरण में जाने से जब हमें धर्म के मुख्य जो उपदेश होते हैं वो हम प्राप्त करें हमारे जीवन के लिए, कि हमें जप कैसे करना है, तप व्रत उपवास कैसे करना है, दान कैसे करना है, किसको करना है, उचित समय, उचित मुद्रा, उचित पात्र, ये सभी को ध्यान में रखते हुए गुरु जो हमें उपदेश देते हैं धर्मशास्त्र के माध्यम से, अगर वो हम पालन करें तो धीरे धीरे धर्म हमारा कवच बन सकता है। और मैं आपको कह दूं कि धर्म जो है हमारा कवच बनकर रक्षा कैसे करता है, बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि से अगर आप देखिएगा, उदाहरण के अगर रूप में मैं आपको बताऊं कि अगर आप धर्म का पालन करते हैं, बहुत ही निष्ठावान है धर्म में, धर्म आपके हृदय में है और धर्म आपको सबसे प्रिय है, कुछ भी हो जाए आपका मन धर्म से डगता नहीं है और आप धर्म में ही स्थित है, तो आपकी वृत्ति ऐसी धर्ममय हो जाएगी। और ऐसी अगर कोई परिस्थिति आए कि आप कहीं जा रहे हैं, आपके सामने 10 शत्रु आ जाए आपको मारने के लिए, आप अकेले हैं, निशस्त्र है, आप निर्बल भी है, आपके पास कोई शक्ति भी नहीं है, शारीरिक शक्ति भी नहीं है, मगर धर्म और आध्यात्म की बहुत बड़ी शक्ति है। तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करता है, तो आप अगर ये सोचेंगे कि सामने वाले जो 10 शत्रु हैं उनके भीतर जो नारायण उनके हृदय में स्थित है, महादेव स्थित है सूक्ष्म रूप में, तो ऐसा भी हो सकता है कि नारायण महादेव जो भी आप कहे, जो परम तत्व है, उनके हृदय में बसे हुए जो है वह उनके हृदय का भाव ही एकाएक बदल दे और उन सभी के 10 के मन में ऐसा ही विचार आए कि भाई नहीं, इनको हमें नहीं मारना है, ये बहुत ही सज्जन पुरुष मान्य लगते हैं, ये धर्म का पालन करने वाले हैं, तो उनको भी, असुर कोटि के जो लोग होते हैं उनको भी धर्मवान लोगों पर बहुत ही मान होता है, क्योंकि उनको भीतर तो पता ही होता है कि हम अधर्म कर रहे हैं। तो जब भी सच्चा धर्मवान ऐसा पुरुष उनके सामने आता है तो उनको लग जाता है कि नहीं, ये धर्मवान है, इसको हमें छोड़ना है, तो उनका ही एकाएक हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह स्वयं आपको छोड़ देंगे या आपसे संधि कर लेंगे या आपसे विमुख होकर चले जाएंगे या आपको कहेंगे कि आप जाइए। तो आपका बचाव धर्म ऐसे सूक्ष्म रूप से करता है, हम और आप ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर इतना सूक्ष्म बुद्धि से अगर कोई सोचे और आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी हो कि जहां आप बहुत ही विपरीत परिस्थिति में हो, लगभग मृत्यु के समीप हो और आप बच गए हो, कैसे बचे हो, अगर आप उस पर बहुत ही चिंतन करें तो कदाचित ऐसा हो सकता है कि आपके जो सत्कर्म हैं धर्म वाले, उन्हीं ने आपको आके बचा लिया है। या आप मानिए कि आप पर्वत पर है, आप कहीं चल रहे हैं, आप गिरने वाले हैं और आप गिर भी जाए, मगर आपको लगता है कि आप सीधे नीचे गिरेंगे, मगर भाग्य से कोई पेड़ होता है वहां अटक जाते हैं या पत्थर पे अटक जाते हैं और फिर आप ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ऐसे हम सभी ने ऐसे बहुत ही किस्से सुने हैं कि लोग पहले माले से गिरकर मर जाते हैं, मगर कोई 10वें माले से गिरता है तो भी बच जाता है। तो
आपने मैंने सब सुने हैं ऐसे, तो बहुत हमारे इस कलयुग में भी ऐसी घटनाएं घटती है। तो इसका सूक्ष्म बुद्धि से अगर हम विचार करें और ऐसे लोगों के जीवन के कर्मों का विचार हम अगर करें, तो हमें कदाचित संभवतः ये उत्तर मिल सकता है कि उनको धर्म ने ही बचाया है, उनके पिछले सत्कर्मों ने ही उनको बचा दिया है। तो धर्म है वो सूक्ष्म रूप से हमारी सहायता करता है। तो हमें केवल धर्म पर विश्वास रखना है, बस संपूर्ण विश्वास। आप कह सकते हैं कि अंधा विश्वास भी अगर रख दे तो भी आप और हम तर जाएंगे इस युग से, इस जीवन से। और अधर्म का आलम्बन जो भी लेता है, तो हमने कितनी कथाएं सुनी है, अधर्म का जोर कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा बन जाए कोई व्यक्ति, जल्द से अधर्म से बहुत बड़ा हो जाए, शक्तिवान हो जाए, धनवान हो जाए, बहुत ही बड़ा व्यक्ति हो जाए, प्रभावित हो जाए, पूरे विश्व का राजा क्यों ना हो जाए, मगर फिर भी राजा भी हो या इंद्रदेव भी हो, अधर्म अगर कोई भी करता है, आलंबन लेता है अधर्म का, तो उसका विनाश तो अंत में निश्चित ही है। सभी कथाएं, कितनी कथाएं हैं। तो रावण भी बहुत ही ऊपर जा चुके थे, मगर उनका अंत तो हुआ ही है। तो ये कथा हमें यही सिखाती है कि भाई हमको अधर्म का आलंबन नहीं लेना है, हमको धर्म का आलंबन लेना है। भले ही कष्ट हमें भोगने पड़े धर्म के मार्ग पर, मगर अंत में जीत हमारी ही होती है। और जो नाम होता है, ख्याति, यश, कीर्ति, धर्म पालन करने वाले की ही होती है। सती नारी की ही ख्याति बढ़ती है, व्यभिचारी स्त्री की कभी ख्याति नहीं बढ़ती है, कोई भी हो। तो ये तो सिद्धांत, ये आप कह सकते हैं कि सनातन सिद्धांत है, निरंतर सिद्धांत। ये तो ऐसे अटल का अटल ही है, चाहे ये दिव्य युग हो या ये कल्प हो या कोई और कल्प हो, धर्म तो धर्म ही रहेगा। तो ये सुंदर संदेश जो हमें माल्यवान से मिलता है, वो इस युग में भी, इस समय में भी कितना महत्व रखता है हम सबके लिए, ये हमने आज जाना है। अगर आपको ऐसे ही सुंदर वीडियोस पसंद है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। गोवर्धन मठ नाम की एक सुंदर चैनल है, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म, ये तीनों से संबंधित सभी प्रश्न आपके सुलझेंगे। आप अगर सुनेंगे तो बहुत सारे वीडियोस है, आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आप जो उनका उपदेश है उसका पालन करते हैं धीरे धीरे, तो आपका मंगल और कल्याण अवश्य निश्चित है। शिव शंकर प्रलयंकर।